हाँ, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जो लास्ट वाला लेक्चर हमारा था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था व्हेन वी कैन से गिवन सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट आर इंडिपेंडेंट, है ना। तो उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था कि व्हेन वी कैन से द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट आर इंडिपेंडेंट बाय मेकिंग यूज ऑफ रैंक मेथड, है ना। और जो आज हमारा टॉपिक है ना, दैट इज सिस्टम ऑफ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस एंड इट इज सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो बेटा एक्चुअली we have a system of equations like this: a11 x1, a12 x2 dash dash a1 and xn equal to say b1, है ना। a21 x1, a22 x2 dash dash a2n xn, है ना, is equal to b2. in the same manner आपने कहा an1 x1, an2 x2 dash dash ann xn is equal to suppose bn. This is a given system of equations. ये हमारे पास system of equations है. It is actually a set of linear equations, है ना. System of linear equations. Simultaneous system of linear equations, है ना. Which contains more than 2 or 3 equations, है ना. तो बेटा आपने कहा सर जो ये given system of equation है ना, हम इसको write down करेंगे इस फॉर्म में: ax equal to b, ax equal to b. Now question arises, what is this a? A is a matrix of coefficients, that is a11 a12 dash dash a1n, है ना. a21 a22 dash dash a2n, है ना बेटा. an1 an2 dash dash ann. This is a, है ना. And what is x? X is a matrix of unknowns. What column x? Like this: x1 x2 dash dash xn. And what is b? B is the matrix of constants and that is again a column b1 b2 dash dash bn, है ना. तो बेटा ये है ना ये वाला, what is this? This is a matrix representation of a given system of equations. Now concentrate on this point. Objective number first. अगर बेटा हमारे पास ax is equal to b है ना, और जो ये b है ना, it is not equal to 0. अगर given system of equations है, आपने लिखा मैथ्स फॉर्म में ax equal to b and b is not equal to 0, then this system is called non-homogeneous system of equations. This system is called non-homogeneous system of equations. बेटा क्लियर हुआ? There are two types of. अब आपके पास given system of equations या homogeneous होगा या non-homogeneous means when this b matrix of constant is not equal to 0 matrix, है ना. and बेटा condition number second, अगर हमें b किसके बराबर मिलेगा, then it is called homogeneous system of equations. Clear? Yes sir. Now question arises, when this system of equations whether homogeneous or non-homogeneous are consistent or inconsistent, हमें ये बताना है when this system of equations is consistent. ठीक है. तो सबसे पहले consistent means, अगर आपको कोई पूछना what is meant by consistent, consistent means which has a solution, inconsistent means which does not exist as solution. ठीक है. तो बेटा अब अगर हमारे पास given system of equations है, that is ax is equal to what is a? A is a matrix of coefficients. What's x? Matrix of unknowns. Column matrix of unknowns. What is b? Column matrix of constants, है ना. तो बेटा आपने कहा अगर सर हमारे पास ये है ax is equal to b, condition b is not equal to 0, this means it's a non homogeneous system of equations, है ना. तो आपने कहा सर पहला पॉइंट, अगर हमें non homogeneous system of equations है and we are getting this determinant of a is not equal to 0, we are getting this determinant of a is not equal to 0. अगर ये determinant of a not equal to 0 है, जो ये given system of equation है ना, ये बेटा consistent है. इस वक्त given system क्या है? Consistent. And it has a unique solution. And it has a in this case it has 12th क्लास का पूरा 12th क्लास का जहाँ पर आप 12th में पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स मेथड, यही है. determinant a not equal to 0, system is consistent and has a unique solution. और इसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड, अगर determinant of a equal to 0, we can't say anything. If determinant of a is equal to 0, we can't say anything. We will obtain adjoint of a. हम एडजॉइंट किसका निकालेंगे? एंड फिर इसका प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ? कांस्टेंट में. अगर वो भी मिला 0 के बराबर, अगेन सिस्टम इज कंसिस्टेंट. इस केस में भी सिस्टम क्या है? लेकिन इस वक्त इसके होंगे इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. बेटा क्लियर? पॉइंट नंबर थर्ड बेटा, अगर आप डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 बट एडजॉइंट ऑफ a into b not equal to 0, system is inconsistent. System is inconsistent means solution does not exist. Hence solution does not exist. बेटा clear? Yes, this was all about non homogeneous system of equation. अब इसके बाद बेटा अगर हमारे पास
होमोजीनियस सिस्टम होगा, दैट इज ax इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि आपने कहा होमोजीनियस मीन्स b इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ax इज इक्वल टू 0। सबसे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, होमोजीनियस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, मीन्स इट हैज अ सॉल्यूशन, इट हैज अ सॉल्यूशन। अगर होमोजीनियस सिस्टम है ना तो इसको सबसे पहले ये होता है कंसिस्टेंट, क्या होता है बेटा, एंड इट हैज अ सॉल्यूशन। While as a homogeneous system of equation is always having a solution, this means it is consistent, है ना। एंड बेटा अब अगर ये होमोजीनियस सिस्टम है और कंसिस्टेंट है, अगर आपके पास ऑल AIs मींस वो कोएफिशिएंट्स, ये सारे AIs किसके बराबर मिलेंगे, 0 के बराबर। इस वक्त जो बेटा इफ ऑल AIs इक्वल व्हेन इट देन बेटा अगर ax इज इक्वल टू 0, अब आपने कहा ये होमोजीनियस है और सर ये कंसिस्टेंट है, और जो सॉल्यूशन मिलेंगे ना हमें, अगर उसमें a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू an, ये सारे किसके बराबर मिलेंगे, 0, देन सच अ सॉल्यूशन कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन, सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स फॉर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और बेटा इफ ai नॉट इक्वल टू 0 फॉर all i, अगर ये सारे ai 0 के बराबर नहीं होंगे, देन इट इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल ऑफ सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस, नॉन ट्रिवियल ऑफ सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा आपने कहा सबसे पहले सर पॉइंट ये है, होमोजेनियस ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव ऑलवेज सॉल्यूशन एंड इट इज ट्रिवियल व्हेन ऑल ai इज इक्वल टू 0। बेटा वहां लिखा होगा ax इज इक्वल टू 0 इज अ होमोजेनियस ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, नीचे लिखा होगा इट इज कंसिस्टेंट, इट इज इनकंसिस्टेंट, हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन, हैज नॉन ट्रिवियल। तो आप लोगों का पहला पॉइंट होगा होमोजेनियस सिस्टम हैज ऑलवेज consistent and it may have a trivial or non-trivial solution. Trivial means when all AIs मिलेंगे 0 के बराबर, and non-trivial means when AI is not equal to 0 for all I, ठीक है? Yes, sir. This was about system of homogeneous and non-homogeneous equation. इसके बाद है बेटा argument matrix. इसके बाद है argument matrix. तो थोड़ा पॉइंट पे कंसिडर करेंगे आप लोग। argument matrix क्या है? argument matrix देखना बेटा, आपने कहा अगर मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है लाइक दिस ax is equal to b and it is non homogeneous, है ना। और बेटा अगर आपके पास ये है ना, आपको पता है a is the coefficient matrix, a is equal to like this, जो आपने भी कहा a11 a12 dash a1n, है ना, a21 a22 dash a2n, है ना, या an1 an2 dash ann, ये कहा ना भी। और x is a column matrix of unknowns, x1 x2 dash xn, ये है ना। और बेटा b आपने कहा कांस्टेंट b1 b2 dash bn, है ना। अगर बेटा हमारे पास एक मैट्रिक्स है a आर्गुमेंट b, दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट मैट्रिक्स, दैट इज अ मैट्रिक्स लाइक दिस a11 a12 dash a1n a21 a22 dash a2n an1 an2 dash ann, और आपने इसको आर्गुमेंट लगाया b1 b2 और bn के साथ, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड आर्गुमेंट मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड। सपोज आपने कहा इस आर्गुमेंट मैट्रिक्स का नाम C, ठीक। अब बेटा अगर रैंक ऑफ दिस आर्गुमेंट मैट्रिक्स C, दैट इज रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स A इज टू B, अगर बेटा रैंक ऑफ दिस आर्गुमेंट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ये याद रखना, सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट। इस केस में बेटा दिस इज एन इंपॉर्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट एंड हैविंग नो सॉल्यूशन। कब, अगर रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, है ना। अब पॉइंट सेकंड, अगर रैंक ऑफ दिस आर्गुमेंट मैट्रिक्स, जिसका नाम आपने C रखा, किसके बराबर है, रैंक ऑफ A और इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, याद रखना, नंबर ऑफ गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। और थर्ड केस बेटा, अगर रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ A मगर लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, देन द सिस्टम इज अगेन कंसिस्टेंट बट हैज इनफिनाइट मनी सॉल्यूशन। बेटा ये पॉइंट क्लियर, सिस्टम इज अगेन कंसिस्टेंट एंड हैज इनफिनाइट मनी सॉल्यूशंस। अब आपका क्वेश्चन होगा सर अगर हमारे पास ये है बेटा, अगर हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम है लाइक दिस ax इज इक्वल टू 0, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, अगर बेटा इस केस में हमें रैंक ऑफ A मिलेगा नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर, किसके बराबर मिलेगा, नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स जो हमारे पास अननोन्स है ना, दैट्स x1 x2। इफ रैंक ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, सिस्टम
सिस्टम हैज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। इस केस में सिस्टम को क्या होता है, दैट इज a1 a2 a3 is equal to 0 and if rank of a is less than number of unknowns is less than number of unknowns, इस केस में याद रखना सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। बेटा दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपके पास एक सिस्टम इक्वल टू 0 है, होमोजीनियस है, तो इसमें अगर रैंक गिवन मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर रैंक लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, again system is consistent but has non-trivial solution. This was all about system of homogeneous equations, non-homogeneous equation, their solution and argument matters. Okay, Allah.